Okay, last lecture we had finished with the different forms of market. Last lecture हमने forms of market देखा था. In this lecture, we are going to study about the index number. अभी index number क्या है? Index number nothing but it is a statistical device which is used to measure the changes in the group of related variables. इंडेक्स नंबर एक डिवाइस है जिसके जरिए हम लोग जो चेंजेस आते हैं वेरिएबल्स में, इकोनॉमिक वेरिएबल्स में, टू ऑब्जर्व दीज चेंजेस वी आर मेकिंग द यूज ऑफ दिस इंडेक्स नंबर. इट इज ओरिजिनली डेवलप्ड टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइस लेवल. इंडेक्स नंबर का यूज किसके लिए किया जाता था पहले? टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइस लेवल. लेकिन एट प्रेजेंट, in a present day, it is used to measure the changes or measure the trend in variety of the areas that include stock market, prices, Good morning, sir. Good afternoon, sir. cost of living. Good afternoon. So it is used to measure the changes in the stock market and it measures the changes in the cost of living and industrial and agricultural production, changes in the export and import. Now, from this it is clear that index number, it does not just measure only the changes in the price level. It is used to measure the changes in the production, agricultural production or industrial production. It is used to measure the cost of living and measure the changes in the stock market prices. हम लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट अप हुआ और डाउन हुआ. तो अभी ये जो चेंजेस है कि शेयर मार्केट अप जा रहा है, डाउन हो रहा है, तो ये भी चेंजेस हम लोग को कैसे पता चलता है? तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स नंबर. तो ये भी सब हम लोग किससे फाइंड आउट करते हैं? इंडेक्स नंबर से. मार्केट अप जा रहा है या मार्केट डाउन जा रहा है, तो कितना पॉइंट से अप हो गया, तो वो पॉइंट्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर. Now, during the 17th century, Rais Wuhan, an Englishman and eminent writer, was concerned with the rise in the prices which occurred in his native land over the preceding centuries. The first study of using the index number was done in the early 18th century. In the 1707 by William Fleetwood. He made the comparison of the prices of the certain commodities such as wheat, oats, bean, cloth, meat, etc. for the period of 1440 and 1460 and 1686 to 1706. The result of the study are presented in his work Chronicle Preciosum in 1738. Charles D. Fernando, the France, constructed the simple aggregative index for the two periods 1508 to 1735. Compare the cost of identical list of the commodities. The first recorded index number appeared in the work of G.R. Carli, an Italian who used a modified form of the simple average of the price
relatives. Now from this it is clear that कि सबसे पहले जब ये index number introduce हुआ, that time it was used to measure the changes in the prices. So Rice Wuhan, he has introduced this index number. He used this index number to measure the changes in the prices for the first time. Now we'll do the definition of index number. तो समझा index number क्या है कि index number एक statistical device है जिसके जरिए हम लोग मेजर कर रहे, क्या मेजर कर रहे कि चेंजेस इन द ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, यानी कि जो वेरिएबल्स में जो चेंजेस आ रहे वो चेंजेस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं. नाउ द फर्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय द स्पाइजेल. नाउ अकॉर्डिंग टू द स्पाइजेल एन इंडेक्स नंबर is statistical measures designed to changes in to show the changes in a variable or a group of related variable with respect with reference to the time, geographical location and other characteristics such as income and profession. Another definition given by the Coxton and Cowden. According to the Coxton and Cowden, index number are devices for measuring the differences in the magnitude of a group of related variables. In short, we can conclude that index number is the statistical device which is designed to measure the changes in the group of related variables. अभी ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स उसमें जो चेंजेस है वो ऑब्जर्व करने के लिए ये इंडेक्स नंबर डिजाइन किया गया है. तो अभी ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल में चेंजेस यानी कि क्या, जैसे अभी प्रोड्यूसर टू मेक द फोरकास्ट, यानी कि प्रोड्यूसर he has to make the different planning. जैसे प्रोडक्शन प्लानिंग है, इन्वेंट्री प्लानिंग है. तो अभी प्रोडक्शन प्लानिंग यानी कि क्या कि फ्यूचर में कितना प्रोडक्शन करना. तो अभी ये जो डिसीजन प्रोड्यूसर लेता है, ये जो प्लानिंग प्रोड्यूसर प्रिपेयर करता है, तो कौन से बेसिस पे वो ये प्रिपेयर करता है, उसको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में कितनी डिमांड रहेगी फ्यूचर में, और उसके बेसिस पे प्रोडक्शन कैसे प्लान करना. तो वो फाइंड आउट करने के लिए ये क्या है ना, मेक द यूज ऑफ द इंडेक्स नंबर. तो ये डिसीजंस लेने के लिए प्रोड्यूसर क्या करता है, इंडेक्स नंबर का यूज करता है. अभी वो कैसे, फ्रॉम with the help of index number you can find out the changes in the production. तो इंडेक्स नंबर ये कुछ अलग डिफरेंट नहीं है, इट इज एन एवरेज. तो अभी इंडेक्स नंबर इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एवरेज और इट इज अ स्पेशलाइज्ड एवरेज. ये क्या है, एक एवरेज है, स्टैटिस्टिकल एवरेज है, जिससे प्रोड्यूसर को पता चलता है कि एवरेज ग्रोथ रेट क्या है, कि कितना ग्रोथ होगा प्रोडक्शन में या डिमांड में. अकॉर्डिंगली ही कैन मेक द प्रोडक्शन प्लान. Similarly, with the help of the index number, we can plan the changes in the production. तो इसी तरह से इंडेक्स नंबर के हेल्प से हम लोग प्राइसेस में क्या चेंजेस होंगे वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. Now here there are some important features of index. पहला जो फीचर्स है, इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस. इंडेक्स नंबर क्या है, एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है. तो इट इज अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ द एवरेज. इट्स अ स्पेशलाइज्ड averages which are capable of being expressed in percentage. इंडेक्स नंबर क्या है, एवरेज है, जो हम लोग किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, परसेंटेज में. नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर measures the net changes in one or more related variables over a period of time between the two different time periods.
इंडेक्स नंबर से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन मेजर द चेंजेस in the related variable between the two different time period or between the two different localities. यानी कि क्या changes आ रहे localities में या between these two time periods. Index number which is computed from a single variable which is called as univariate index number. अभी इंडेक्स नंबर हम लोग अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर if you are calculating the index number from the single variable, अगर हम लोग सिंगल वेरिएबल से अगर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिवेरिएट इंडेक्स नंबर. इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिवेरिएट इंडेक्स नंबर. यूनि सिंगल, वेरिएट index means what? The changes in single variable. Variate means changes in uni means single variable. That means what? Index number, if it measures the changes in the single variable, then it is called as a univariate index number. If it measures the changes in the group of a variable, अगर इंडेक्स नंबर अगर ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में अगर चेंजेस फाइंड आउट करें, then it is called as a composite variable. Okay, अगर सिंगल वेरिएबल में चेंजेस फाइंड आउट करा है, then it is called as a univariate. अगर डिफरेंट वेरिएबल्स में अगर चेंजेस फाइंड आउट करा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट इंडेक्स नंबर. So in this way we can measure the changes in the variable. Univariate, single, composite, different variable. तो अगर सिंगल वेरिएबल में चेंजेस फाइंड आउट करना है, then it is called as a univariate. If we are calculating the changes in the different variable, then it is called as a composite index number. Now, the index number, the year for which the index number is prepared. अभी जिस साल के लिए हम लोग इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वो ईयर को हम लोग क्या कहेंगे? करंट ईयर. और द ईयर फ्रॉम विच वी आर मेजरिंग द चेंजेस. अभी जिस ईयर से करंट ईयर तक हम लोग चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो जो प्रीवियस ईयर है या जिस ईयर से हम लोग ये चेंजेस को मेजर कर रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बेस ईयर. अंडरस्टैंड? करंट ईयर यानी कि जो ईयर के लिए हम लोग चेंज इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें, यानी कि प्रेजेंट ईयर के लिए जो अगर हम लोग इंडेक्स कैलकुलेट करें, वो ईयर को हम लोग क्या कह रहे हैं? करंट ईयर. एंड द ईयर फ्रॉम विच वी आर ऑब्जर्विंग द चेंज, जिस ईयर से हम लोग चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे, ओके, द ईयर फ्रॉम विच वी आर ऑब्जर्विंग द चेंजेस, वो ईयर यानी कि जो प्रीवियस ईयर है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? बेस ईयर. नाउ द बेस ईयर इंडेक्स इज ऑलवेज 100. तो बेस ईयर इंडेक्स हम लोग कितना लेते हैं? हमेशा 100. तो इंडेक्स नंबर इज आल्सो एन इकोनॉमिक बैरोमीटर. अभी इंडेक्स नंबर को इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहा जाता है. Now why it is called as an economic barometer? Because it measures the changes in the economic activity. इंडेक्स नंबर को इकोनॉमिक बैरोमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि
Why it is called as an economic barometer? Because we are observing the changes in the economic activity. इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रहे, तो वो चेंजेस ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग इंडेक्स नंबर का यूज करें. और इसीलिए सिंस इट मेजर्स द चेंजेस इन द इकोनॉमी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर. अभी इंडेक्स नंबर क्या कर रहा है? इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रहे वो चेंजेस को मेजर कर रहा है, and therefore it is called as an economic barometer. Now here there are some terminologies. अभी हमने देखा व्हाट इज द बेस ईयर. बेस ईयर किसको कह रहे हैं? जिस ईयर से हम लोग चेंजेस ऑब्जर्व करें करंट ईयर तक, तो जो प्रीवियस ईयर यानी कि जिस ईयर से हम लोग चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ईयर को हम लोग क्या कहते हैं? बेस ईयर. तो बेस ईयर इट इज नोटेड डिनोटेड बाय जीरो. बेस ईयर को हम लोग क्या नोटेशन यूज करते हैं? जीरो. करंट ईयर यानी कि जिस ईयर के लिए हम लोग कंपैरिजन कर रहे या चेंजेस मेजर कर रहे वो ईयर को हम लोग क्या कह रहे हैं? करंट ईयर. और करंट ईयर की वैल्यू हम लोग कितनी लेते हैं? 1. तो करंट ईयर इज डिनोटेड बाय 1. ओके. बेस ईयर इज डिनोटेड बाय 0. ओके. अगर हम लोगों को बेस ईयर प्राइस लेना है तो बेस ईयर को क्या नोटेशन देंगे? P0. और करंट ईयर प्राइस को हम लोग क्या नाम देंगे? P1. बेस ईयर क्वांटिटीज आ रहा कॉल्ड एज ना Q0 और करंट ईयर क्वांटिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं? Q1. Q1 इज द करंट ईयर क्वांटिटी. Now we'll see the different types of index number. Following are the different types of index number. पहला है प्राइस इंडेक्स नंबर, सेकेंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, थर्ड वन वैल्यू इंडेक्स नंबर, एंड फोर्थ इज स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर. पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज द प्राइस इंडेक्स नंबर. तो अभी प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है कि इट मेजर द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज. तो अगर गुड्स के प्राइसेस में जो चेंजेस आ रहे वो चेंजेस चेंज इन प्राइस, प्राइस कितना परसेंट से चेंज हो रहा है. अगर हमको प्राइसेस में अगर चेंजेस ऑब्जर्व करना इन द टू डिफरेंट पीरियड, then we will make the use of the price index number. Okay, understand what is the price index number. प्राइसेस में चेंजेस ऑब्जर्व करने के लिए जिस इंडेक्स नंबर का यूज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस इंडेक्स नंबर. Now if you want to observe the changes in the output, अगर हमको प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन कितना परसेंट से चेंज हो रहा है अगर वो ऑब्जर्व करना है, then we will make the use of quantity index. Okay, so if you want to changes in the production अगर कितना प्रोडक्शन कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है अगर वो मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मीन्स व्हाट? इट मेजर्स द चेंजेस इन द आउटपुट और फिजिकल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी. इकोनॉमी में प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है कि डिप्रेशन हो रहा है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए वी कैन मेक द यूज ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. अभी जैसे एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ रहा है कि इंडस्ट्री का आउटपुट बढ़ रहा है, कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, टू कैलकुलेट दैट वी विल मेक द यूज ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर.
नाउ व्हाट इज वैल्यू इंडेक्स नंबर? अभी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी, व्हाट वी डू, we measure the price of that commodity with the quantity. We will get the value. तो वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या मेजर कर रहा है? तो इट मेजर द चेंजेस इन वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ रुपी. तो वो वेरिएबल की वैल्यू मेजर करने के लिए वी विल मेक द यूज ऑफ वैल्यू इंडेक्स नंबर. तो अभी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यू इंडेक्स नंबर, क्योंकि वैल्यू इंडेक्स नंबर में हम लोग प्राइस के साथ साथ और क्या चीज ले रहे हैं? क्वांटिटी. प्राइस इंडेक्स नंबर में वी आर ऑब्जर्विंग ओनली द चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में वी आर ऑब्जर्विंग ओनली द चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी और चेंजेस इन द फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल आउटपुट और प्रोडक्शन. तो वही ऑब्जर्व कर रहे हैं. एंड वैल्यू में वी आर ऑब्जर्विंग बोथ. We are measuring the changes in the prices as well as the quantity. The next type of index number that is called as a special purpose index number. Now, what is the special purpose which is used for specific purpose? जो specific purpose के लिए use किया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? Special purpose index number. अभी specific purpose के लिए use किया जाता है means what? We are suppose if you want to calculate the changes in the share market prices. तो अगर शेयर मार्केट प्राइसेस में क्या चेंजेस हुए, शेयर मार्केट में क्या चेंजेस हुआ, अप्स एंड डाउन्स हुए, टू मेजर दिस चेंजेस वी आर मेकिंग द यूज ऑफ दिस स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर. तो वो चेंजेस मेजर करने के लिए हम लोग स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर का यूज करते. Now here the state government, अभी state government they are making the use of the different index number. तो state government अलग अलग index number का use करते हैं. जैसे consumer price index number. Consumer price index number we are concerned only with the, we are concerned more with the consumer price index number. It is also called as a retail price index number. तो consumer price index number को retail price index number भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग वी आर कॉल्ड एज ना कंज्यूमर. हम लोग होलसेल मार्केट में कोई भी चीज परचेस नहीं करते. वी आर परचेसिंग इट फ्रॉम द रिटेल प्राइसेस. वी आर डील विद द रिटेल मार्केट. तो अभी रिटेल मार्केट में जो प्राइसेस में जो चेंजेस आ रहे वो चेंजेस ऑब्जर्व करने के लिए दैट गवर्नमेंट इज यूजिंग द रिटेल प्राइस इंडेक्स. The next index number is wholesale price index. Wholesale price index number में हम लोग क्या करते हैं? We are calculating the changes in the prices in wholesale market. यहाँ पे हम लोग क्या changes observe कर रहे हैं? Changes in the prices in the wholesale market. तो यहाँ पे consumer price में हम लोग क्या calculate करें? Changes in the prices in the retail market. Next is that's a agricultural index number. तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स. और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर मींस व्हाट? यहाँ पे चेंजेस इन इंडस्ट्रियल आउटपुट या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं. इंडेक्स ऑफ सर्विस ऑफ प्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे चेंजेस इन सर्विस प्रोडक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं. एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वी आर यूजिंग इट to measure the changes in the export and import, that is the foreign trade.
Human Development Index, we know that human development, it measure the changes or the changes in the human development. Now here we will see that importance of index number. So the index number, why we have to study the index number, that we will do in a next lecture. Now if you are having any doubt, you can ask.